Assalamu alaikum everyone and welcome to the Voice of CA. I'm Ibrahim Rahman and I'll be your host in this episode. First and foremost, ICAP has taken this great initiative and will be calling upon other chartered accountants over here. No, it won't be about spreadsheets and numbers, but it will be about their journeys, how they achieved their professional excellence, what was the success mantra behind their success. We'll be calling them to understand their journey. So, whether you're a student or a professional or an entrepreneur, this podcast will have something for you. So, with us today, there's a very interesting guest, Huria Batul. And Huria is the youngest chartered accountant, and she's a Guinness World Record holder as well. So, she has a very interesting personality as well. So, today we'll understand what her journey is. So, Assalamu alaikum, Huria, how are you? Walaikum assalam. I'm good. How are you? So, let's start with the basic thing जो आपको बंदा देख के सोचता है. So you qualified at the age of 19, right? Yes. So this is young for any qualification actually, be it a chartered accountant. So how is your journey different from others? क्या difference है जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दी qualification It's you got always the there? first question, Yeah. right? Yeah. So it's the one question that I'm actually asked most of the time. कहीं भी जाती है, so this is one question जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है. If I talk about my journey, so it started when I did my seventh grade. I was a Okay. very regular student. I was 12 years old, I guess. Yeah, I was 12 years old when I did my seventh grade. So my father used to teach O levels. I used to study in the educators. उसमें Cambridge offer नहीं होता था. So my father was of the view कि नहीं यार इसको ना Cambridge करवाना. So Okay. मैंने seventh complete किया in March. My father was looking for schools कि अच्छा अब किस school में जाना है इसने और there was a lot going on उस time पे. तो my father took me to his academy और उन्होंने कहा चलो जब तक school decide नहीं होता ना you just study there. मैंने कहा okay ठीक है. I was just going with the flow. अच्छा, my father took me to his academy और I was just doing nothing actually there. And there was one friend of my father and I vividly remember every little detail of that incident actually. Okay. तो he I said Amjad ज़रा आते हो side पे. And he took my father to another room and after like half an hour of discussion my father and he came outside और वो मुझे कहते हैं मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तुम ना अभी it was March, it was somewhere like in mid June actually. तो my father said कि तुम ना नवंबर में ना अपीयर हो जाओ 4 subjects पे. And I Oh. was like okay, because I actually did not know कि okay what is happening right now Okay. and what is O levels और ये क्या चीज़ है. तो my father said okay you're appearing in 4 subjects in November. मैंने कहा okay fine. So I started studying on my own. Privately appeared in 4 subjects, or I gave 4 subjects in November. And my father said, "Okay, now you'll give the rest of the 6 in next June." मैंने कहा Okay. ओके. तो मैंने नेक्स्ट जून में 6 सब्जेक्ट्स में भी अपेयर हो गई. सो आई वॉज 13 when I completed my O levels. I did not go to any school. मैं privately appear हुई in all those 10 subjects and I completed my O levels when I Okay. was 13. इसके बाद my father said okay now you have done your O levels so next year you can appear in A levels. So I was 14 when I was done with my A levels. Okay. So O Yes, so level and A level आपने बहुत जल्दी मैंने किया. बहुत जल्दी कर ली. So Hmm. it was nothing that was planned actually, Hmm. and I honestly had no idea what I was doing at that time because Okay. it was something that my father told me to do, and I was like okay, like an obedient child. I said okay, I will Hmm. do it. So So before seventh कौन सा school था आपका? I was Before studying school. in the educators. Okay, the educator. Yes. Perfect. So by the time I completed my A levels, I was 14. I had accounting subjects because privately you cannot appear in science subjects. Although Hmm. I had some interest in sciences at that time, but I had business accounting subjects in my O levels and A levels both. Okay. So yes, I was done with my A levels very in a very early age. Then it was time catch up. Now what I had to do. My father wanted me to become a chartered accountant, and yes, it was in my personal interest as well at that So time. at the age of 14, how did Yes. you have that personal interest? So basically, everyone wants to be a doctor Mhm. or engineer at that time. And at the age of 14, where chartered accountancy is perceived to be a tougher qualification. Yeah. So आपने वो किस तरीके से एक माइंड आपका प्रोसेस क्या था उसमें? अच्छा, let me tell you something. So जब मैं बहुत छोटी थी, when I was like 5-6 years old, so I remember once I was talking to my cousin. I call her Api. So I asked her कि आपी वो जो टोपी पहनते हैं सर के ऊपर Okay, वो कौन सी क्लास interesting. होती है? Very तो interesting. मैं आपी सेड वो ना ग्रेजुएशन होती है, वो काफ़ी बड़ी क्लास होती है. Hmm.
तो मैंने कहा मैं ना ग्रेजुएशन करूँगी। सब कॉन्वोकेशन की बात करेंगे या बेसिकली। सो ओके। आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्वोकेशन। तो मैंने कहा आप ये कहती हैं लेकिन इससे भी बड़ी ना मास्टर्स होती है। मैम आप इट्स बिल्कुल जस्ट अ सही है। कपल ऑफ इयर्स ओल्डर देन मी, ऑब्वियसली उनको भी आइडिया ओके, नहीं था। सही तो है। कहती उससे भी बड़ी क्लास ना मास्टर्स होती है। मैंने कहा अभी ना मैं मास्टर्स करूँगी। फिर आप ये कहती इससे भी बड़ी ना पीएचडी होती है, वो सबसे मुश्किल होती है। ओके। मैंने कहा मैं ना फिर पीएचडी करूँगी। सो आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कि जो यू आर द मुश्किल थ्राइव चीज़ ऑफ है। या एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इन यस, थ्राइव से। सो आई थिंक कि ये जो चीज़ है ना कि हाँ बहुत टफ है या ऑल दिस स्टिग्मा है इन द सोसाइटी, तो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स सीए, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि अच्छा कितना को मुश्किल है, क्या ऐसी चीज़ है. सही है। So this is something that actually motivated me to become a chartered accountant. ओके, And परफेक्ट। obviously, I had an aptitude for accounting, maths, business, and obviously I was good in because when I assessed myself, I thought कि हाँ I carry the right aptitude for chartered accountancy. आई थिंक एट द एज ऑफ 14 सबको सिर्फ यही लगता है कि मैथ्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, Yeah, क्योंकि yeah. उस वक्त बाद में जाके फिर पता होता है वी हैव लॉ एज You, वेल, you, वी you हैव have a डिफरेंट lot थिंग्स एज of वेल। things. हाँ। Yeah. So actually, before starting my chartered accountancy, I downloaded the syllabus from ICAP website, ओके। और I was going through it, and I said, oh, IT भी है, oh, या इसमें तो बिल्कुल सही। law भी है, ट्रू। और I became so excited कि अच्छा मैं law पढ़ूंगी, मैं IT पढ़ूंगी, because obviously I did not want to confine myself just to accounting or maths, of course. So I was always a student that was diversified, that had interest in every subject. So when I saw the curriculum, I said, okay, this looks interesting. I Okay, understand this is that. something I can do. Okay, So perfect. yes. So your father had that thing as well, that he wanted as well कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। Yeah. Okay, so that was it. Okay, so जब आपने डिसाइड किया, सो वहाँ उस वक्त आई थिंक मॉड्यूलर सिस्टम होता होगा ना, Yes. मॉड्यूल A B C D। सो ये भी इंटरेस्टिंग है, इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड आईकैप में। Yes. सो आपको कोई एग्जाम्पशंस मिली थी बिकॉज यू डिड ए लेवल्स, या फिर आपने शॉर्ट से ही स्टार्ट किया इसको, मॉड्यूल ए से स्टार्ट किया No. था? So in A levels you need to have certain subjects जिसके ऊपर basis के ऊपर you get those exemptions. Oh, So unfortunately I did not have those combination in my A levels. आई थिंक आपको तो और प्लान ही नहीं था, सो यू नेवर प्लान फॉर इट। प्लान नहीं था, प्लस यस आई डिड नॉट नो कि अच्छा एग्जाम्पशंस का भी कुछ इस तरह से होता है, और ऑब्वियसली इट वाजंट समथिंग प्लान्ड Planned, सही एट द बात है। टाइम आई वाज डूइंग माय ए लेवल्स. तो आई डिड नॉट गेट एन एग्जाम्पशन, बट देयर वाज अ फास्ट ट्रैक जिसमें आप मॉड्यूल ए और बी इकट्ठे कर सकते थे. Yes. सो देयर वर 5 सब्जेक्ट्स, आई डिड फास्ट ट्रैक एंड आई डिड माय ए एंड बी मॉड्यूल इन फर्स्ट गो. Okay, यस, सो great. उसे आई सेव like 6 months. 6 months. Yes. And then for C&D you did fast track again? No, no, no. Okay. No, no. ठीक है। So C फिर आपने C दिया and D दिया, and Yes. then आपने इंस्टीट्यूट से किया था या ये भी प्राइवेटली किया था आपने? अच्छा, सो मेरा ना एक छोटा सा जो मसला मुझे लगता है ना, सो आई टेंड टू जोन आउट इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. Okay, ठीक है। Yeah, so I cannot listen to someone explaining theory to me. I tend to zone out. This ठीक is है। some one habit that I actually hate about myself. ठीक है। So what I did was, for theoretical subjects I study on my own, because मैंने because उससे पहले कैम्ब्रिज में मैंने privately किया था, so I was used to studying at my own pace. सही बात है। Yes, so theoretical subjects mostly I did it myself. For numerical subjects, yes, at classes. ओके, परफेक्ट। सो उसके बाद ऑब्वियसली फर्म की इंडक्शन जो है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बिकॉज सी को जो आई थिंक डिस्टिंग्विश एक बहुत ज़्यादा करती है चीज़, वो ये करती है दैट वी हैव एक्सपीरियंस एज वेल इन आवर क्वालिफिकेशन, एक एक्सपीरियंस भी अटैच होता है। बट फर्म का जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी बड़ा एक ड्रेनिंग होता है, बिकॉज आप चाह रहे होते हैं यू गेट इन टू द टॉप फर्म, एक एंजाइटी भी होती है कि उसमें जाएं ना जाएं। सो हाउ वाज योर प्रोसेस, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट प्रोसेस इंडक्शन के लिए? Okay, so obviously I wanted to land in Big Four. My parents wanted me to that's right. land in Big Four. My parents were sure that I will get inducted in Big Four, but I did not want to, set a higher expectation for myself, because I बिल्कुल। was open to options. कि अच्छा, I might not get inducted in Big Four because I was actually very young. I was 16 when I was बिल्कुल। looking for articles. So I gave application in top 10 firms, I remember. Yes. ठीक है। But Alhamdulillah, I got call from Ferguson. Before, I don't think I gave interview in any other firm, because मुझे उससे पहले Ferguson से I got call from there. Okay. How I prepared for it? So yes, I was very nervous, because obviously it was the first interview ever I have to give to anyone, and just
the thought of it कि you have to be in front of a panel of chartered accountants and they'll be throwing questions at you and you don't know कि अच्छा वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे. So what I did was I took a month जिसमें after passing module T, I started watching videos on YouTube how to give interview. Okay. Then I got a channel. It was very good. It was I don't remember the YouTube channel actually. Okay, So but it was yes, about it interview. was very good. हाँ. He explained very well how to give interview, how to present yourself, and the common interview mistakes that people make. So I went through every video of his and I prepared myself for that. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह the interview went very well. So yes. आई थिंक उस वक्त इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में इतनी कोई बात भी नहीं होती थी. अब तो Yes. इट्स अ थिंग और हर बंदा प्रिपेयर करके जाता है. बट उस वक्त आई थिंक इट वाज नॉट दैट नॉर्म कि हम यूट्यूब भी इतना कॉमन नहीं होता था. Yes. सो वो था. सो फर्म में हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज फर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप बिल्कुल जूनियर से जाते हैं एंड देन यू नो रैंक अप. बेसिकली आई थिंक ऑडिट असिस्टेंट 1 होते हैं पहले, फिर ऑडिट असिस्टेंट 2 बनते हैं, फिर सीनियर, फिर सुपरवाइजर Yes. सीनियर. So when you started as a junior, तो how was your experience? Teams कैसी थी? Client पे interaction कैसा होता था? Because मुझे याद है जब हम लोग client पे जाते थे and we were very young, तो client को पता होता था, इसको कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता. So I mean, how did you cope up with that? How was your experience? At first, it was terrible. Okay, yeah. Of course, like Everyone every other junior, Yeah. I made a lot of mistakes. Senior से डांट भी पड़ती थी. Mm. But alhamdulillah, I had such good seniors that I'm actually in contact with till now, till date. Okay. So I had very good seniors जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा काम सिखाया, Hmm. ग्रूम किया मुझे. और आई रिमेंबर, अच्छा आप पहले जाते हो ना, सबसे पहले आपको एक्सेल नहीं यूज़ करना आता सही होता, बात है. आप माउस यूज़ कर रहे होते हो. सो देयर वाज माय सीनियर एंड ही सेड, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा, हुरिया अगर इफ़ आई सी यू यूजिंग माउस, तुम पे 500 पेनल्टी होगी एवरी Exactly, टाइम सही यू यूज़ बात है. माउस. और आई गॉट स्केयर्ड बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे आपके पास पैसा भी नहीं होता कि यू यू सही यू बात कैन है, गिव yeah. 500 पेनल्टी फॉर एवरी True, टाइम यू यूज़ true. माउस. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. सो आई स्टार्टेड यूजिंग द कीबोर्ड एंड एवरीथिंग. And now I'm so good in Excel, so I always give credit to him कि हाँ उन्होंने उस टाइम पे कि मुझे ना रोका होता तो आज मैं भी शायद माउस यूज़ कर रही सही होती. बात है. So yes, then of course आप क्लाइंट के पास जाते हो and client is like, अच्छा ये काम ये तो ये करता है, ये काम ये तो ये करता है, तो वो गोली करा देते हो. सही बात है. और यू आर सो जूनियर एट दैट टाइम कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हुई क्या उस टाइम पे. सो हाँ, आपको फिर सीनियर जब डांटते हैं ना, फिर देन यू रियलाइज़ कि अच्छा अब आप ना कुछ गलत करके आ गए हो. सही बात है. But eventually, by that time, you learn कि अच्छा how you have to deal with client. You have to be conceptually clear first of all. Then of course you have to go there with facts. So whenever you go with facts, it's hard to deny. It's hard for other person to गोली नहीं करा सकता कोई सही आपको, बात है. right? So you learn it with time. You learn it from your seniors, from your mentors कि अच्छा वो किस तरह से deal करते हैं clients को, and then you try to copy that and replicate that in your own personal life. So yes. So I think client to client भी बहुत depend करता है because यार आप so you are Lahore based, right? I'm You are in Lahore-based, Lahore yes. Ferguson. So कुछ multinational होते हैं, they treat you differently. कुछ let's say इतनी बड़ी companies नहीं होती हैं, छोटी companies होती हैं, small cap होती हैं, कुछ mid tier होती हैं. So हर client का भी एक अलग अलग interaction होता है, एक Yes. अलग वो dealing होती है. So how was your experience with the अच्छा. diversity of the clients? कुछ clients पे आप जाते हैं ना, so कुछ clients पे they treat you like कि ऑडिटर साहब आ गए हैं. बिल्कुल. So they give you so much protocol And they are there. small size companies. Yes. Yeah. So they give you so much protocol कि ऑडिटर आए हैं, उनके खाने का इंतज़ाम Yeah, हो जाए, बिल्कुल. उनके लिए पानी कॉफ़ी आए हैं, ऑडिटर आए हैं, फर्गसन से आए हैं, तो काफ़ी आपको ना एक प्रोटोकॉल मिलता है. सो यस यू फील गुड उस Yeah. टाइम पे. देन यू गो टू सम कंपनी और उसमें दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देयर एंड दे नो कि अच्छा कौन आए, ये फर्म से आए हैं, बच्चे आए हैं, एंड दे ट्रीट यू लाइक अच्छा अच्छा ठीक है आपको देखते हैं बताते हैं. सही बात है. So बिल्कुल. there's a lot of different kind of experience, but yes, this is part of learning. Yeah. यही आपको exposure मिलता है कि how you have to deal with different kind of people in different type of एंड environments. किस इंडस्ट्री का आपने नॉर्मल ऑडिट जो किया था आपने, वो ज़्यादा कहाँ पे एक्सपोजर आपको मिला था? There was different. I had experience in FMCG, Okay. in construction as well, then NGOs, IT sector. Okay, So great. I had a very diversified Diversified experience. Yes. Perfect, perfect. So जो बेसिकली जो सीनियर्स होते हैं, आई थिंक जब सो आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू फर्म, सो स्टेपल करने से लेके पंच मशीन यूज़ करने से लेके दे बेसिकली टॉट एवरीथिंग. आपने एक्सेल की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी है.
सो अगेन वो सॉफ्टवेयर्स भी फर्म में होते हैं ऑडिट का ऑडिट हम्म के एंड वो भी होते हैं. सो जब शॉर्ट में हम लोग व्हेन वी स्टार्टेड फर्म्स, सो वहाँ पर जो जूनियर होता था उसको रिसोर्सेज का बड़ा इशू होता था. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस रिस्पेक्ट एंड आपने ट्रांजिशन क्या देखा था व्हेन यू मूव्ड टू अ हायर लेवल? हम्म फर्म में जो चेंजेस आए थे वो किस तरह आपके आए थे चेंजेस? अच्छा, so I remember कि my first client was packages. So I was there, or I had a senior, or he just came there और आके ना he just gave everyone orders like, यार इसका देखना कि इसमें 500 मिलियन से जितनी बड़ी अमाउंट है ना वो कर दो, इसमें से इसको देख लो, इसमें से इसको कर दो, एंड he just gives everyone orders and he went. And I was like कि इनको कैसे पता है सारी चीज़ें? हाउ सही. डज ही नो कि ये थ्रेशोल्ड है या इतनी हम्म. वैल्यू से ऊपर देख लो, या हाउ डज ही नो? तो मैं सोचती थी कि क्या 3.5 साल बाद मैं भी इस पोजीशन पे होंगी कि मैं भी इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकूं. Initially, it was, yes, it was very tough. I actually had self doubts कि पता नहीं मैं कर भी सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ. Everybody has self doubts, I guess. So, but I think the transition that you were talking about is कि you need to, get out of your comfort zone and yes, try to learn new things. Okay, even if I'm not in on an area, I used to see कि अच्छा what the other person is doing, what my colleagues are doing, just to learn from them कि अच्छा how are they doing the area, because कल को अगर if I get there तो how will I manage things. So you need to, get out of that comfort zone. कि अच्छा सिर्फ बिल्कुल. आप अपने एरिया तक नहीं, you need to get a holistic picture of the entire Entire financial company statements and and entire entire के financials. आपका जो एरिया how is it linked with the entire audit, complete end to end किस तरह से procedures are, not just being confined to one area. Yes, So when you look you're at the right. holistic picture, then only then you are in a position to become an audit senior. ट्रू. सही कह रहे हैं आप. सो आई थिंक आप पेपर्स भी ई और एफ आपके होंगे उस वक्त, डेफिनेटली होंगे ई एंड एफ, Yes. तभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हुई. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई मीन एक बंदा काम भी कर रहा होता है, फिर उसको पढ़ना भी है, क्लासेस भी हैं. आई थिंक आप जितना प्राइवेटली करी थी आपको क्लासेस का तो इशू शायद नहीं हुआ होगा बिकॉज यू कुड डू थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल. बट अदर देन दैट पढ़ाई का और पेपर लीव्स का, हाउ डिड यू मैनेज दैट एंड किस तरीके से आपका पेपर्स का जर्नी किस तरह रहा था आपका? अच्छा, फाइनल्स में आई टू क्लासेस. ओके. सो अब तो ऑनलाइन क्लासेस है फॉर्चुनेटली फॉर स्टूडेंट्स. बिल्कुल. उस टाइम पे ऑनलाइन इट्स सच अ क्लासेस नहीं ब्लेसिंग. थी. यस, सच अ इट ब्लेसिंग. इज़ अ ब्लेसिंग. पीपल डोंट नो बट इट इज़ अ ब्लेसिंग. उस टाइम पे इट वाज वेरी टफ रूटीन कि आपने सुबह क्लाइंट पे जाना होता था, देन यू 5:30 या 5 से फ्री होते थे, देन यू हैड टू गो टू द इंस्टीट्यूट. फिर आप इंस्टीट्यूट से लाइक क्लासेस ख़त्म होती थी अराउंड 10-11, एंड देन यू हैव टू गो होम, देन आप खाना खाते हो, नमाज़ पढ़ते हो, एंड देन यू हैव टू स्टडी. सही बात So है. it was very tough routine at that time. But एंड कम्यूट में भी इतना टाइम से आया होता था. exactly commute में, and उस time पे you don't have car. You बिल्कुल. have to avail a सही public बात है. transport. Yeah, someone from your family has to manage it. So it was quite difficult. So but I think it was something that actually trained us. या. Yes, this is something that trained us, because अब जब हम प्रोफेशनल जॉब करते हैं, we are actually in a professional environment actually. तो वी सी कि हाँ उस टाइम ने हमें किस तरीके से ग्रूम किया. वी एक्चुअली सी दैट हैपनिंग. वी एक्चुअली ट्रू. सी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स. यस, बट इफ आई टॉक अबाउट योर क्वेश्चन कि पढ़ाई को किस तरह से मैनेज किया, सो यस आई अंडरस्टैंड दैट वो काफ़ी मुश्किल होता है उस टाइम पे, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेरी टायर्ड एंड यू हैव टू गो टू क्लाइंट टुमारो, और आपने साथ में पढ़ाई को भी मैनेज करना है. सो द की दैट आई फॉलोड वाज कि अच्छा जब मैं घर आती थी, सो आई जस्ट हैड द टारगेट कि आज जो पढ़ा है आई जस्ट हैड टू रिवाइज इट, अदरवाइज कल तक वो भूल जाएगा. सही बात है. सो वो कल मुझे लग रहा है कि हाँ आई हैव रिटेन्ड एवरीथिंग, लेकिन कल मुझे भूल जाएगा वो. सो यू सो यूज्ड व्हाट टू डू इट आई एवरी डिड, डे. यस, सो व्हाट आई डिड वाज कि हाँ मैं घर आती थी एंड आई जस्ट यूज्ड टू रिवाइज व्हाट आई हैव लर्न टुडे, नथिंग एल्स, एंड देन आई यूज्ड टू गो थ्रू एवरीथिंग ऑन द वीकेंड. सो दिस वाज माय की व्हिच आई इट्स एक्चुअली एक्चुअली वेरी फॉलोड. इंटरेस्टिंग सजेशन एज वेल बिकॉज पीपल थिंक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि बिल्कुल एंड में ही बैठेंगे एंड पढ़ लेंगे एंड हो जाएगा. No, सो no, वो it's very एग्जैक्टली सर. difficult. Yeah, सो yes. व्हाट वुड बी योर सजेशन जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, वो किस तरीके से अपने मॉड्यूलर जो स्टार्ट के पेपर्स हैं और जो फर्म लाइफ है उसको किस तरीके से बैलेंस करें? अगर मैं पहले की बात करूँ आर्टिकल से पहले, तो सो आई थिंक दैट्स क्वाइट इजी एज ओके. कम्पेयर टू आर्टिकल्स लाइफ, सही बात बिकॉज है. उसमें आपने ऑब्वियसली आप काम भी कर रहे काम हो. नहीं कर रहे हो, तो अभी यू आर रिलेटिवली वेरी रिलैक्स्ड.
उसके लिए आई डोंट थिंक कि उसके लिए कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, you just have to study. But if I talk about the articles life, so what mistake that I see people usually do is कि which honestly I also did initially was कि हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट अभी बिकॉज आपके 6 मंथ बाद पेपर नहीं होते, सो यू बिकम वेरी रिलैक्स कि अच्छा अभी भी हैव सही बात है। टाइम. उससे क्या होता है कि थिंग्स पाइल अप and in the end you don't have sufficient time to cover the whole syllabus and पैनिक everything. कर जाते हैं पैनिक लोग। कर जाते हो आप. And honestly syllabus होता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही भी है, yes, true। वो बहुत ज़्यादा होता सही है, yes. बात है। So कॉर्पोरेट लॉ आई थिंक उसमें ओपन बुक भी नहीं होता होगा। उस टाइम कॉर्पोरेट नहीं लॉ था. सिर्फ अकेला ही जो है आई थिंक वो सीए के बराबर है पूरे। यस यस उस टाइम पे तो नहीं था ओपन बुक है. या सो तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई सजेस्ट कि हाँ स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द डे वन. ओके उस पेस के ऊपर ना करो, आई एग्री कि अच्छा यू नीड टू सम टाइम टू रिलैक्स, बट जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द डे वन, चाहे थोड़ा बहुत करो. एंड दिस इज वेरी देन द मीनिंगफुल। अदर थिंग इज़ कि हम क्या करते हैं कि हम ना क्लाइंट पे जो काम होता है ना, हम उसको किस तरह से मैनेज करके चलते हैं. हम शुरू में बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात और है। बाय द एंड ये जब ऑडिट रिपोर्ट इशू इनिशियल्स के दिन करीब आते जाते हैं, फिर हम लेट सिटिंग्स कर रहे होते हैं, और फिर सब कह रहे होते हैं कि हमारी क्लासेस मिस हो गई हैं, अब हम क्या करें, अब हम किस तरह से पढ़ें. तो आई थिंक कि अगर हम पहले से उसको मैनेज करना शुरू करें तो शायद उस टाइम पे आके हमें टाइम मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है. सो आई थिंक एक बैलेंस मेंटेन करना, आपकी प्रोफेशनल और आपकी स्टूडेंट लाइफ, इन दोनों को आपने एक बैलेंस मेंटेन करके चला है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस इज समथिंग यू विल लर्न विद बाय टाइम। टाइम by experience, but I hope not with experience. ट्रू, सही बात है। So yes. बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल, वेरी इंटरेस्टिंग कि डिसिप्लिन, आई थिंक आपने जो बोला डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वही आपकी वाली बात कि स्टार्ट में लोग पढ़ते नहीं हैं, एंड में पढ़े होते हैं, एंड ऐसे ही स्टार्ट में काम भी नहीं कर रहे होते, वो एंड में कर रहे होते हैं। तो ये Yes. जो एटीट्यूड है इसकी वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर बंदे को वहाँ पे। So this was very insightful, Huria. Thank you so much. Thank So we're you. done with your educational journey over here, and we'll conclude this episode over here. So in the next episode, we'll be talking about Huria's professional journey, and do watch that as well, and stay tuned. Thank you so much.